السلام علیکم معزز ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرت حبیب عطاری صاحب کی آواز میں شب معراج کا پورا واقعہ سنیں گے کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور وہاں کیا کیا ہوا اور کب و کتنے وقت میں واپس آئے۔ میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں۔ آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے۔ مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اب جبریل امین کو جگانا ہے، اللہ اکبر، اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے۔ براق کی بات بھی سن لو، جو اتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا، اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے، سواری بھیجی جنتی سواری براق۔ اچھا، براق جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی ذرا سنیے گا۔ حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا، اگلا قدم ادھر رکھتا تھا دوبارہ آئی سائڈ جدھر جاتی تھی۔ اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا، اور سبحان اللہ براق کے اندر ایک زبردست شاک آبزرور بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگیں، ذرا اسموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کس شان سے بلایا۔ جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا تھا نا، آسمان کی طرف، تو روایتوں میں لکھا کہ اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے۔ جب یہ اوپر جاتا تھا تو پچھلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ اس کی پشت سیدھی رہے، نبی پاک کو سواری میں تکلیف نہ ہو۔ اچھا، جب یہ براق نیچے اترا، اب کوئی گھوڑا نیچے اتر رہا ہے، آگے کی طرف ہو جائیں گے، پھر ڈیفیکلٹی ہوگی۔ فرمایا جب نیچے اترا تو اس کے اگلے پیر اونچے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ حبیب کو بلایا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کس شان سے سواری بھیجی گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی، جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آل ٹوگیدر ونس ٹائم، ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں، صفے تیار ہیں، مؤذن فرشتے ہیں، اقامت دینے والے جبریل امین ہیں۔ اور اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے۔ امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے، اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے۔ اب سفر آسمان میں وہی براق ہے، وہی بارات ہے، وہی دولہا ہے، وہی باراتی ہے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ یہ پہلا آسمان کتنا دور ہے ذرا غور کیجئے گا۔ پلک جھپکتے کچھ ہی لمحوں میں نبی پاک پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اب یہ سب انبیاء جو ہے نبی پاک کو ویلکم کر رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک آگے بڑھتے گئے، اب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ اب یہاں جو ساتھی ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے جبریل امین، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نجم ایسا لگتا ہے جب پڑھیں تو کہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سنو، میرے آقا جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیا ہوا وہاں پر۔ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب باتیں کیا ہوئی وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا،
अब वही फरमाई अपने बंदे को, जो वही फरमाई, रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है, जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया, वक्त वही ठहरा हुआ था। माजरा ये है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात यह है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, है जब जान चली गई तो जहान रुक गया था, आका वापस आए जहान ने फिर चलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। नबी पाक तशरीफ लाए और अब सुबह के वक्त मेरे आका ने उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये वाकया सुनाया, आपने कहा मेरे आका मक्के वालों को बताइएगा नहीं, वो मानेंगे नहीं, ये ऐसी बात है ये और आपकी मुखालिफत करेंगे। जरा गौर कीजिए, वो वक्त था जब फकत 40-50 तकरीबन 80-90 के करीब मुसलमान थे, ज्यादा मुसलमान नहीं हुए थे। 11 सने नबवी का वक्त है और मेरे आका ने फरमाया मैंने तो जरूर बताना है। नबी पाक ने मक्के वालों के सामने बताना शुरू किया। अबू जहल बदबख्त कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप मुझे कह रहे हैं मैं अगर मक्के वालों को जमा कर लूं उन्हें भी कहेंगे? कहा बिल्कुल। मक्के वाले जमा कर लिए गए। कहा बताइए आप क्या कह रहे थे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, मैं आसमानों की सैर करके आया हूं। अल्लाह अकबर। मक्के में शोर बच गया। अबू जहल ने नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू की। कहा देखो ये कैसी बात करते हैं। कुफर वाले तो थे ही थे, कुछ ईमान वाले भी तजब्जुब हो गए। जो कमजोर ईमान वाले थे उन पर भी इम्तिहान की घड़ी आ गई। अल्लाह अकबर। जब ये शोर शराबा हुआ तो मक्के वालों ने कहा कि आज मौका अच्छा है अबू बकर सिद्दीक को प्यारे आका से दूर करने का। वो दरवाजे पर गए, कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आ गया हूं। कहा वाकई मेरे आका कहते हैं? हो सकता है सवाल करने वाले ने सोचा हो कि अब तजब्जुब आ रहा है, हेजिटेशन आ रही। कहा हाँ तुम्हारे नबी यही कहते हैं। कहा अगर मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। कहा ए अबू बकर तुम तो बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो ये सच है? क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते मैं तो इससे बड़ी खबरों की तस्दीक करता हूं। जब नबी पाक मुझे आसमान की खबर देते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, वही नाजिल होती है, ना जिब्रील को देखा ना कुरान नाजिल होते देखा। मैं नबी पाक की जब उन बातों को मानता हूं तो मैं इसको भी मानता हूं। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये सफर कंप्लीट हुआ। मगर इस सफर में एक और बड़ा कमाल का काम हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तोहफा दिया गया और वो तोहफा क्या है? नमाज का तोहफा दिया गया। जब मेरे आका वापस आ रहे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होगी। क्या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह से क्या लाए हो? प्यारे आका फरमाते हैं कि मुझे 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की गई हैं। हजरत मूसा कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वापस जाइए, कम करवा कर लाइए, मैंने बनी इसराइल मेरी कौम को देख लिया है, ये 50 नहीं पढ़ सकेंगे। नबी पाक फिर जाते हैं, वापस आते हैं, 45 हो जाती है। बताइए 45 हो गई? कहा नहीं और जाइए, ये ज्यादा है, कम करवाइए। फिर जाते हैं, 40 हो जाती है। फिर जाते हैं 30, 35, 30। आप अर्ज करते रहे, प्यारे आका जाते रहे, बार बार नबी पाक जा रहे हैं, आखिर 5 हो गई। हजरत मूसा ने तो वहां भी कहा था हुजूर इसको भी कम करवा के लाइए। नबी पाक फरमाते हैं मुझे हया आती है अल्लाह की बारगाह से। मगर वहां से इरशाद क्या हुआ? हदीस पाक है कि जब 50 से 5 कर दी गई तो आवाज दी गई ए महबूब हमारी बात नहीं बदलती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इन 5 के बदले में 50 का सवाब है। ए मुसलमानों ये तोहफा मेराज की रात मिला। तो आज सब नियत कर लें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो अब ये समझने वाली बात है कि ये अहादीस में है,
अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि मुझे हजरत मूसा ने कहा कि जाइए वापस अर्ज कीजिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे और अंबिया तो सुभान अल्लाह, अंबिया, सहाबा, औलिया अल्लाह के करम से ये दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी मदद करते हैं। ये यकीनन हमारा अकीदा है कि जितने ये जो बुजुर्गाने दीन हैं, ये मरने के बाद जो भी हेल्प करते हैं ये अल्लाह की अता से करते हैं। ये हमेशा याद रखिए, बिइज़्निल्लाह अल्लाह इन्हें ये पावर देता है और वो रब की अता से किसी की मदद करते हैं। हर नबी, हर वली, हर सहाबी वो मोहताज है रब का, रब किसी का मोहताज नहीं है। तो अगर ये अकीदा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। सफर मेराज के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम घर आए, तो घर से बाहर जब आए तो एक कनीज को देखा जो रो रही थी, बेचारी कमजोर सी कनीज थी और उसके हाथ में एक आटे का थैला था। नबी पाक ने फरमाया क्यों रो रही हो? कहती हुजूर मैं फुला गैर मुस्लिम की कनीज हूं, मेरे मालिक ने मुझे चक्की में आटा पिसवाने के लिए भेजा, मैं बीमार हूं, चल भी नहीं पाती हूं, अब मुझे देर हो गई है, मुझे डर है कि अब मैं ये आटा लेकर लेट पहुंचूंगी ना तो मुझे बहुत डांटेगा, मुझे सजा देगा। बेचारी चल भी नहीं पा रही थी। अल्लाह के हबीब, रब के हबीब अभी अभी मेराज से आए हैं, इतना बड़ा शरफ पाकर आए हैं, मगर नबी पाक ने फरमाया अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे मालिक के पास तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। नबी पाक ने उस कनीज का आटे का थैला उठा लिया, मेरे आका उसके घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब दरवाजे पर गैर मुस्लिम देखता है तो हक्का बक्का रह गया, जानता था कि ये मुसलमानों के नबी हैं। तो कहा आप कैसे तशरीफ लाए? तो फरमाया कि ये तुम्हारी कनीज है, परेशान थी, डर रही थी तुम्हारे पास आने के लिए, इसको माफ कर दो। तो बताइए वो क्या कहता है, वो जो गैर मुस्लिम था, कहते पहले मुझे बताइए आपको आज रात मेराज नसीब हुई है ना? गैर मुस्लिम कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात आपको मेराज नसीब हुई है? नबी पाक ने फरमाया हाँ। वो अंदर गया, वापस आया, उसके हाथ में तौरात शरीफ या इंजील मुकद्दस आसमानी किताब थी और वो कहता है ये देखिए इसमें नबी आखिरुज़्ज़मा की ये निशानी लिखी हुई है कि वो नबी जो आखिरी नबी होंगे, जब उनको जिस रात मेराज होगी उस रात की सुबह वो एक कनीज के आटे का थैला उठाकर किसी गैर मुस्लिम के दरवाजे पर जाएंगे। हुजूर आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाहु अकबर। अब ये मेरे आका की शान है कि नबी पाक की इस मेराज का जिक्र और मेराज के बाद इस आजजी का जिक्र भी आसमानी किताबों में मौजूद है। अभी भी इस वाकये के बाद भी हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि जनाब ये कैसे मुमकिन है, शायद आज से 50-100 साल बाद साइंस कोई टाइम मशीन बना लेगी तो लोग कहेंगे हाँ यार ये मुमकिन था। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अकल की लिमिट होती है, अल्लाह की कुदरत की कोई लिमिट नहीं है। जो रब कुन फरमाकर फयकून फरमा सकता है, जो इस दुनिया और कायनात को बना सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। उसने कुरान में खुद ये फरमाया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो खालिक है, वो मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। तो बहरहाल अल्लाह करीम ने हमारे आका को ये अजीम मौजज़ा अता फरमाया। अच्छा, अब नबी पाक के इस मौजज़े में दो कमालात हैं। कमालात तो बहुत सारे हैं। एक तो ये कि प्यारे आका ने ये लॉन्ग ट्रेवल किया और टाइम नहीं लगा, एक ये कमाल हो गया, यानी टाइम रुक गया। दूसरा कमाल ये हुआ कि नबी पाक ने फ्यूचर में ट्रेवल कर लिया। ये जो नबी पाक ने जन्नत देखी, जहन्नम के तबकात देखे, ये सब होना है, ये हुआ नहीं है। कयामत होगी, नबी पाक ही जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, फिर लोग जन्नत में जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे जब हिसाब किताब हो जाएगा। यानी हजारों साल के बाद जो होना है मेरे आका ने वो भी जाकर देख लिया। ये भी नबी पाक की शान है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जहन्नम में ऐसे लोगों को देखा कि उनके पेट बड़े बड़े कमरों की मानिंद हैं। फरमाया ये कौन हैं? तो बताया गया ये सूद का काम करने वाले हैं। नबी पाक ने देखा कुछ लोग मुर्दार खा रहे हैं। फरमाया ये कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर ये लोगों की गीबत करते थे, जो गीबत करते हैं, दोस्तों में बैठकर लगाई बुझाई उसकी बुराइयां, खुदा के वास्ते ना करेंगे। आगे चलें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ औरतों और मर्दों को देखा जिनको उनकी छाती के साथ लटकाया गया। फरमाया कौन है ये? कहा कि हुजूर ये मुंह पर ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने ऐसे भी लोगों को देखा कि जिनके होंठ पकड़ पकड़ कर गलफड़े फाड़े जा रहे हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। अर्ज किया गया झूठ बोलने वाले। ऐसे लोगों को देखा कि जिनके सर कुचले जा रहे हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बड़े पत्थर से कुचले जाते हैं।
فرمائے کون ہے یہ؟ کہا حضور نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے. فضیلت ہے وہ سن لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ رجب کی 27ویں رات ہے. جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے 12 رکعتیں، ہر 2 رکعت بعد التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لے، بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں. 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 100 بار پڑھیں. پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ، اور پھر 100 بار درود پاک پڑھیں.